Hello everyone, how are you? I think you all are good. Before starting our class, let me discuss something about our last class. So in our last class, we have discussed about an indirect method to measuring the large distances, like the distance of a star from Earth by a method that is the parallax method. So before starting this class, let me discuss something. We have the different method to measuring the different distances, like the distance of the distant stars from the Earth, the molecular size, the distance of an aeroplane from the Earth, the distance of the length or the depth of a submarine inside the ocean. We have the different methods, but in this particular class, we will discuss about two type of distances. One of them is very large distances, like the distance of a star from the Earth, which have been discussed in the last class, that is the parallax method. And now in the today's class, we are going to discuss the measurement of a very small distance, that is like the radius of atom, and the name of the method is the Avogadro hypothesis. But before discussing this, let me clear what is the difference between the hypothesis and the theory. Sometimes we are writing the theory of particular scientist, the concept and the principle and the hypothesis. So here we discuss the difference between the theory and the hypothesis. तो चलिए बात करते हैं. सबसे पहले थ्योरी क्या है? थ्योरी वो है जो किसी भी लॉ की थ्योरी प्रिंसिपल के साथ जब हम लिखते हैं तो वो लॉ ऑलरेडी रिसर्च में वेरीफाई हो चुका होता है, तो हम बोलते हैं दिस इज द थ्योरी. और लॉ जैसे गॉस लॉ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, दे आर वेरीफाइड बाय द रिसर्च. बट इन केस ऑफ हाइपोथेसिस मीन्स परिकल्पना. हाइपोथेसिस में क्या करते हैं कि हम लॉजिक तो साइंटिफिक लेते हैं, बट वो रिसर्च जो उसको प्रैक्टिकली वेरीफाइड करती हो वो क्या होती है, कंप्लीट अगर ना हुई हो तब तक हम उसको हाइपोथेसिस बोलते हैं. वेरीफाइड तो है लॉजिकली, बट रिसर्च के कंप्लीट नहीं है. अभी हमारी रिसर्च उसी टॉपिक पे चल रही है और उसमें हमें कोई पॉइंट मिल जाता है जो पॉइंट लॉजिकली वेरीफाइड होता है, तो हम उसको बोल देते हैं हाइपोथेसिस. तो in this class we are going to discuss about the measurement of a very small distance like the radius of an atom by the Avogadro hypothesis. So your topic for today is Avogadro hypothesis. इसमें हम ये पता करेंगे कि कैसे हम एक एटम की रेडियस फाइंड आउट करते हैं. I think you know that the smallest particle in the nature is the atom, and atom consists of many electrons, protons and neutrons. Okay. There is a nucleus inside the atom which contain the protons and neutrons, and electrons are revolving around the nucleus in their orbit, especially in their permissible orbit. बट इन सब चीज़ों का डिस्कशन बाद में भी करेंगे और केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ेंगे. आज हम सिर्फ मेथड की बात करने जा रहे हैं, स्मॉलर डिस्टेंस को हम कैसे मेजर करते हैं. तो देखते हैं क्या होता है स्मॉलर डिस्टेंस. तो अवोगाड्रो हाइपोथेसिस है क्या, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं. तो अकॉर्डिंग टू दिस द वॉल्यूम occupied by the atoms is 2/3 of the volume of specimen. Thus, according to this, the volume occupied by the atoms is 2/3 of the वॉल्यूम ऑफ द स्पेसिमेन. इसका मीनिंग क्या है वो समझ लेते हैं.
अगर हमने कोई मटेरियल लिया है, लाइक हमें तो पता है सब कुछ एटम से ही मिलकर बना है, ये मैंने एक ग्लास शीट ले ली है, तो इसका पर्टिकुलर कोई वॉल्यूम आप देख रहे हैं, जैसे ब्रेथ है, लेंथ है, थिकनेस भी है, ये 3 डायमेंशनल, तो इसमें वॉल्यूम हो गई, लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस। तो इसका पूरा ग्लास का वॉल्यूम हम यही काउंट करेंगे, लेकिन एक्चुअल में इसमें है क्या, एटम से ही तो बना है ना ये भी, तो इसमें जितने भी एटम हैं मीन्स उनका वॉल्यूम क्या है, तो इस ग्लास शीट को मैं बोर्ड पे एज्यूम करता हूँ, लाइक दिस इज द ग्लास शीट, इट्स वॉल्यूम इज भी सपोज कर लिया, इसकी कोई ना कोई डेंसिटी भी होगी, उसको भी सपोज कर लेते हैं, रो इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल, ग्लास है तो ग्लास, अगर ये मेटल शीट होती है तो मेटल, आयरन, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, एनीथिंग, तो इसको हमने सपोज किया। अब इसमें है क्या, वी ऑलरेडी नो दैट देयर इज ए सर्टेन स्पेस बिटवीन द एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड, स्पेस होता है ना, सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैसेस में भी होता है, और ये भी हमें पता है सॉलिड में सबसे कम होता है, लिक्विड में उससे ज़्यादा होता है, और गैसेस में उससे भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ ये सॉलिड की हम बात कर रहे हैं, तो स्पेस तो यहाँ भी होगा, तो एटम्स लाइक दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ एटम। ये एटम्स का इसमें अरेंजमेंट है। तो इसमें मटेरियल कितना है, बीच में तो स्पेस है ना, खाली जगह है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एटम आ गया। इन सबको अगर हम ये स्पेस को रिमूव करके कलेक्ट कर दें, कलेक्टिवली एक जगह सेलेक्ट कर लें, लाइक दिस, स्पेस को रिमूव करते हुए इन सारी एटम को हमने इतने से स्पेस में ले लिया, जबकि कितना स्पेस ऑक्यूपाइड किए हुए थे, इतना। तो इस शीट का जो स्पेसिमेन हमने लिया है सैंपल, उसका टोटल वॉल्यूम v और डेंसिटी कितनी थी रो, और इन्हीं एटम्स को अगर हमने अलग से कलेक्ट करके लिए तो ये इतनी सी जगह में आ गए। तो ये हाइपोथेसिस क्या करता है, जब हम मेजर करते हैं फीड का वॉल्यूम तो ये आता है, इसी को हम मटेरियल का वॉल्यूम बोल देते हैं। हाइपोथेसिस क्या करता है, ये जो वॉल्यूम है हमने एटम्स को कलेक्ट किया है स्पेस को रिमूव करके, तो ये वॉल्यूम इस वॉल्यूम पर कितना होगा 2/3v। मैं अगर आपको एग्जाम्पल से बताऊं तो लाइक दिस इज 9 मीटर क्यूब फॉर एग्जाम्पल, और 9 सेंटीमीटर क्यूब ले लेते हैं, 9 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इन दिस मेटल शीट इज 2/3 into 9, 3 3 9, दैट इज ओनली 6 सेंटीमीटर क्यूब। कब है ना डेफिनेटली, और ये हमें भी पता है कि बीच में जो स्पेस है उसमें ग्लास एटम्स नहीं होंगे, तो ये एवोगाड्रो हाइपोथेसिस है। इसकी हेल्प से हम एक एटम की रेडियस को कैलकुलेट करेंगे। अब समझ में आ रही, ये हमने मेटल शीट ली थी या ग्लास शीट ली थी, जैसे कि मैंने आपको शो की जैसे, और इसका वॉल्यूम का सपोज किया है v है, और इस मटेरियल की डेंसिटी रो है। तो इसके अंदर जितने भी एटम्स हैं अगर उनके स्पेस को हम रिमूव कर दें तो उन एटम्स का जो टोटल वॉल्यूम होगा इस वॉल्यूम का 2/3 होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमने 9 अज्यूम किया, तो 2/3 का मतलब 6 सेंटीमीटर क्यूब स्पेस ही ऑक्यूपाइड करेंगे एटम्स, बाकी बीच का फ्री स्पेस है, खाली स्पेस। ये हाइपोथेसिस है, और इसकी हेल्प करके हम एटम की रेडियस को कैलकुलेट करेंगे। कैसे वो देखते हैं, ये तो मैंने आपको हाइपोथेसिस बताई है, इसका यूज करके एटम की रेडियस कैसे कैलकुलेट होती है। देखते हैं रेडियस के बारे में। पहले तो हमें सपोज करना पड़ेगा लाइक दिस इज एटम। अब इसके अंदर की हम बात नहीं कर रहे हैं, इसमें न्यूक्लियस हो, इलेक्ट्रॉन्स हो, कितने भी बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इसकी रेडियस की बात कर रहे हैं। कितनी r सपोज कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ एटम, इसकी हम रेडियस भी सपोज कर लेते हैं। लेट r be the radius of atom and rho the density material। जिस मटेरियल के मैटर की बात कर रहे हैं उसकी डेंसिटी को हमने रो एज्यूम कर लिया है, ये हमें सपोज कर लिया है। अब
एवोगाड्रो नंबर के बारे में आई थिंक आप ऑलरेडी 9th-10th के स्टैंडर्ड से जानते हैं। तो एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम। और अगर किसी भी मटेरियल का, सब्सटेंस का मॉलिकुलर वेट हमें पता है तो 1 ग्राम में क्या सपोज करेंगे? नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम कितना हो गया? एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाई द मॉलिकुलर वेट। एम इज मॉलिकुलर वेट, ठीक होगा। और जो स्पेसिमेन हमने लिया है उसका मास अगर एम है तो एम में कितने एटम्स होंगे? देखते हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन एम ग्राम इन स्पेसिमेन कितने होंगे? एम मल्टीप्लाई बाई एन बाई एम। एन तो आपको ऑलरेडी पता है ना, इट्स एवोगाड्रो नंबर एंड इट्स वैल्यू इज एन इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10⁻23। दिस इज द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रो नंबर। तो हमने सपोज किया कि जो अपने स्पेसिमेन लिया है, लाइक इसी क्लास C को अगर हम दोबारा एग्जाम्पल में जूम करें तो इसका जो मास है वो स्मॉल एम है और इस क्लास का जो मॉलिकुलर वेट है वो कैपिटल एम है। और एवोगाड्रो नंबर में ऑलरेडी पता है, तो 1 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स होंगे n/m। एम ग्राम में कितने होंगे? 1 ग्राम में इतने, तो एम मल्टीप्लाई हो जाएगा एम एन ग्राम। और अब एक एटम को वॉल्यूम एज्यूम कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द एटम, वॉल्यूम कितना होगा? एटम कैसा होता है? एटम को हम सपोज करते हैं द शेप ऑफ एटम इज स्फेरिकल और स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है या सरफेस एरिया आपको पता है कितना होता है? 4πr²। वॉल्यूम कितना होता है? 4/3πr3। नोटिस करते हैं वॉल्यूम ऑफ एटम इज 4/3πr2 वेयर आर द रेडियस ऑफ दैट एटम। तो ये तो हुए एम ग्राम स्पेसिमेन में नंबर ऑफ एटम्स। तो एम ग्राम स्पेसिमेन का वॉल्यूम कितना होगा? ठीक है, देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन एम ग्राम स्पेसिमेन कितना होगा? एम इंटू एन बाई एम। ये तो नंबर्स हैं, जितने भी एटम है, 2 है, 3 है, 1000 है, 2000 है। और ये एक मॉलिक्यूल एटम का वॉल्यूम है। क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ एटम इन एम ग्राम ऑफ स्पेसिमेन। ये तो वॉल्यूम हो गया। अब हम क्या करेंगे? लेट वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन इज V, then from देन फ्रॉम एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। अगर जो हमने स्पेसिमेन लिया है उस स्पेसिमेन का वॉल्यूम, जैसे फिर से बताता हूँ, इस पूरे का वॉल्यूम V है जो हमने यहाँ सपोज किया है, और इसके अंदर एटम्स का जो वॉल्यूम है वो हम ये निकाल के लाए हैं, m इंटू L/m इंटू 4/3πr2। तो अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो हाइपोथेसिस क्या होना चाहिए? ये जो एटम्स जितने वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया है वो इस एक्चुअल वॉल्यूम का कितना होगा? 2/3। तो अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, इस डायग्राम को मैं रख कर रहा हूँ। 2/3 इंटू m इंटू n/m 4/3πr³ equals to 2/3v। और because density equals to mass upon volume, then v equals to mass upon density। v को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं, तो देखिए क्या होता है? 2/3 mn/m इंटू 4/3πr³ 2/3, sorry, this is m/n 4/3, volume occupied by the atom is 2/3 of the volume, that is 2/3 into volume is small m upon rho। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, m and m is cancelled, remaining term is
and this 3 and 3 will also cancel. The remaining term is 4 pi r cube upon m to 2 upon rho. The 2 is again cancel here. So r cube is equals to m upon 2 pi rho. n. R equals to m upon 2 pi n rho whole power 1 by 3. By this formula we can calculate the radius of atom. तो हमें क्या है, मोलिकुलर मास जिसके भी मेटेरियल का एटम होगा पता ही होता है 2 evaporate. Pi has the value 3.14 and the Avogadro number we already know that 6.023 into 10 to the power 23. और जिस मटेरियल का भी स्पेसिमेन है उसकी डेंसिटी और मोलिकुलर मास हमें पता ही होता है. ये पुट करने के बाद हम रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस इज द मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द रेडियस ऑफ द एटम. तो इसके थ्रू आप कर सकते हैं. इसी पूरे प्रोसेस को आप इस को कॉस्ट करके नोट डाउन कर सकते हैं. सर हम एक छोटे से और टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं रिलेटेड टू द सेम टर्म मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस. तो ये आप स्क्रीन क्रॉस करके नोट डाउन कर लें. मैं इसको रख करता हूँ. एक मेजरमेंट और ले लेते हैं. मेजरमेंट ऑफ हाइट ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोल. एक मेथड और देख लेते हैं. जैसे हमारी स्ट्रीट्स में, गली में, मोहल्ले में इलेक्ट्रिक पोल्स लगे होते हैं, उनका भी एक इनडायरेक्ट मेथड की बात कर लेते हैं जिसको हमको कुछ चढ़ के मेजर ना करना पड़े किसी दूसरे तरीके से. लेकिन इसमें पर्टिकुलर मेथड में एक कंडीशन है. व्हेन यू परफॉर्म दिस एक्टिविटी फॉर मेजरिंग द हाइट ऑफ ए इलेक्ट्रिक पोल और एनी पोल इन योर रीजन, देन देयर इज ए कंडीशन, द डे मस्ट बी सनी. सनशाइन होनी चाहिए, तब हम इस मेथड को यूटिलाइज कर सकते हैं. कैसे देखते हैं. लेट वी हैव ए इलेक्ट्रिक पोल. दिस इलेक्ट्रिक पोल हो गया ए एंड बी. दिस इज द इलेक्ट्रिक पोल. दिस पोल को हम क्या करते हैं, जब सनी डेज होंगे तो हमें पता है कि शेडो होती है. पोल कास्ट ऑफ शेडो ऑन द ग्राउंड. अगर इसकी शेडो भी हमें मिल जाए, दिस इज द शेडो, सी इज द शेडो, ये शेडो. तो इस पोल की टिप जो है वो क्या करेगी, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म करेगी जहाँ तक ये पोल है. ठीक है, एंगल फॉर्म करेगी और ये एंगल सपोज करते हैं थीटा. इस पर्टिकुलर मेथड को आप मेथड्स एज्यूम कर सकते हैं, स्मॉल एक्टिविटी एज्यूम कर सकते हैं, बट मैं जस्ट बता रहा हूँ. दिस इज ऑल्सो इनडायरेक्ट मेथड टू मेजर द हाइट और लेंथ. और ये भी एक इनडायरेक्ट मेथड है. अब हमें क्या करना है, अब वैसे तो इसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, मीटर स्केल लें, इस पोल के ऊपर चढ़े, वैसे भी मेजर कर सकते हैं. बट हम बात इनडायरेक्ट मेथड की कर रहे हैं, तो इस पोल को डायरेक्टली मेजर नहीं करेंगे, पोल की लेंथ को इनडायरेक्टली मेजर करेंगे. तो इनडायरेक्टली मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, तो पोल तो हो गया बहुत हाइट का जहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते. बट सनी डेज में हम क्या करेंगे, इसकी शेडो ले ली. शेडो जहाँ पे एंड हो रही है वो एक पॉइंट ले लिया, द एंड ऑफ द शेडो इज सी. और अगर ये हमने ले लिया तो अब हम क्या करते हैं, दैट वी हैव अ स्मॉल स्टिक. जैसे ये मार्कर है, मैं इसको स्टिक सपोज कर लेता हूँ. आपने एक स्टिक ली और इसके फ्रंट में होल्ड इट परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड ऑन द शेडो. इसको हमने होल्ड किया और ये इसको होल्ड किया, तो इसकी टिप की भी शेडो बनेगी. मेरी वो शेडो इधर हो, यहाँ हो सकती है. तो आपको इसको आगे पीछे करके इस तरीके से मैनेज करना है, ऐसे कि इसकी टिप की शेडो उसी पॉइंट पे जाके बने
सी पॉइंट पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल के टिप की शेडो बन रही है। तो अगर हम यहाँ पे एक स्टिक यूएसए देखते हैं, ये तो हो गया पोल, ये हो गई स्टिक, और ये हो गया एंगल। इस स्टिक को भी कोई नाम देते हैं, ईडी इज द स्टिक। तो नाउ अगर हमें ये एंगल पता हो और ये शेडो है, इसकी लेंथ तो हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं ग्राउंड पे। इसकी लेंथ को मेजर करके हम क्या करेंगे, इस पोल की लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे देखते हैं, हाइट ऑफ पोल सपोज कर लिया हमने कैपिटल एच, हाइट ऑफ स्टिक स्मॉल एच, और ये है क्या, ए बी है, और ये कौन सी है, ए डी है। एंड एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू एंगल ई सी डी, सॉरी ए सी डी, दिस एंगल, ये दोनों ही इक्वल है। तो मैथड एक बार सुन लीजिए, ऑलरेडी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसको क्लियर करने के लिए अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। We can measure the height of electric pole by an indirect method in which, ठीक है, in a sunny days, we have the shadow of this electric pole on the ground, like the shadow is VC, and then we have to take a small stick of a known length, जितनी भी लेंथ की हो उसकी हमें पता करनी होनी चाहिए, ये हम मेजर कर लें बाई मीटर स्केल से, and keep the stick perpendicular to the ground, such as the shadow of the tip of a stick at the same point, that is the C, इस point पे हो। In this situation, the angle formed by this stick and this pole is equal, that is the theta। और इसी का हम यूटिलाइज करके हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखते हैं, इन ट्राइंगल ACV और ABC, इन राइट ट्राइंगल ABC, tan थीटा होता क्या होता है, इन राइट ट्राइंगल tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इज AB एंड बेस इज BC, और यहाँ भी हम सपोज कर लेते हैं लेट दिस डिस्टेंस इज कैपिटल D, और सॉरी दिस डिस्टेंस इज X एंड दिस डिस्टेंस इज Y, इसको भी नोटिस कर लेते हैं। So AB is equals to H from here and BC is equals to X from here. So this can be considered as the equation first. Now in triangle EDC, इस triangle की बात करते हैं again. Tan theta using the same formula, perpendicular upon base. So for this angle, triangle EDC, perpendicular is this, the height of the stick, and the base is this, CD. Now ED upon CD, and ED is equals to small h from here, and CD is equals to y. This is also equation. क्या करेंगे, दोनों में tan थीटा की वैल्यू इक्वेट कर लेंगे। Equating the right hand side of equation first एंड इक्वेशन सेकंड, इन दोनों की लेफ्ट हैंड तो ऑलरेडी इक्वल है, तो जब लेफ्ट हैंड इक्वेशन की इक्वल है, दोनों की राइट हैंड तो इक्वल होगी होगी। रिलेट कर लेते हैं, क्या मिलेगा हमें, दिस h अपॉन x इक्वल्स टू h अपॉन y, h अपॉन x इक्वल्स टू h अपॉन y, और हमें मेजर क्या करना है, ये हाइट। तो नाउ द h इज इक्वल्स टू h इनटू x अपॉन y, means the height of electric pole will be equals to the height of a stick multiplied by the ratio of the distance length of the shadow formed by the electric pole divided by the length of the shadow formed by the stick which we are hold, जिसको हमने होल्ड कर रखा है उस स्टिक की रिटर्न हो गई। तो यहाँ पे लिखेंगे by knowing the h, x and y
we can calculate height of electric pole or an other pole. इलेक्ट्रिक पोल की या कोई दूसरा पोल हो तो उसके लिए हम ऐसे बहुत सारे मेथड हैं. Indirect method for measuring the height of mountain, indirect method for measuring the height of a tree, and the echo method by which we are sending the electromagnetic waves through the medium or through the air, and which collide with the object like an aeroplane in the air and reflects back by calculating the time sending or receiving the waves. And the speed of electromagnetic wave is, we already know, this is the 3 into 10 to the power 8, the speed of light. So we can easily calculate the distance of a aircraft or aeroplane or any heavy object in above side from the earth. And same the solar method, sound navigation and ringing मेथड के थ्रू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं सबमरीन की डेप्थ. वहाँ भी हम क्या करते हैं, अल्ट्राफोनिक वेव्स को ओशन में भेजते हैं और वो सबमरीन से कोलाइड करने के बाद में वापस आती है. तो हम टोटल टाइम वेव को जब भेजा है वो और जब वो लौट के आई है रिफ्लेक्ट बैक, उसके टाइम को मेजर कर लेते हैं. तो जितना टाइम जाने में लगा होगा उतनी डिस्टेंस को कवर करके आने में लगा होगा. उस टाइम को हाफ करके अल्ट्राफोनिक वेव की वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दें तो सबमरीन की डेप्थ हमें पता चल जाती है ओशन में कितनी डेप्थ पे सबमरीन है. ऐसे ही एयरक्राफ्ट की हाइट के बारे में और एंगल के बारे में भी हम ऐसे ही पता करते हैं. रडार के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिलीज करते हैं और जाने का टाइम और जब वो कोलाइड होकर वापस आती है आने का टाइम, तो टोटल टाइम को हम हाफ से डिवाइड कर देते हैं. तो हाफ से डिवाइड करके स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें एयरक्राफ्ट की डिस्टेंस पता चल जाती है और हाइट पता चल जाती है. तो दीज आर 2 अदर मेथड्स बाई इको मेथड. सो as we have the different or many methods, but we are discussing only 2 methods. One method for the large distances and other method for the small distances. So that's all for today class. And in our next class we will discuss about the dimensional method or the dimensions. Till then, enjoy the journey of science. Bye.